بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ابرار احمد ایڈوکیٹ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 4 اپریل ہے اور آج کے دن ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس کیس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل مرڈر ہے۔ اچھا، یہ ایک ایسا کیس ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کہ میں نے جب بھی اس کو اسٹڈی کیا یا اس ٹاپک کے اوپر میں نے بات کی تو دل بہت دکھی ہوا ہے، کیونکہ بھٹو صاحب کو بالکل ناجائز طور پر جوڈیشل طریقے سے مرڈر کیا گیا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے کچھ یادداشتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں، ان کو بھی میں ڈسکس کروں گا، لیکن اس کیس کے حوالے سے جو چند ایک اہم باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایسا واحد کیس ہے کہ جس میں صرف ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تھی، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک ابیٹمنٹ میں، یعنی کہ اگر کسی بندے کے خلاف کسی کو قتل کرنے کے حوالے سے مشورے کا الزام لگایا جائے تو بھٹو صاحب کے علاوہ آج تک کسی کو پھانسی نہیں دی گئی۔ صرف واحد ایک بھٹو صاحب ہیں جن کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کیس میں جو سب سے بڑے بڑے بلنڈرز کیے گئے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احمد رضا قصوری صاحب کی مدعیت میں ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے نامعلوم ملزمان کے خلاف کہ اس کے والد کا نامعلوم لوگوں نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ایف آئی آر کے بالکل اینڈ پہ جا کے ایک چھوٹی سی لائن لکھی گئی تھی کہ یہ قتل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مشورہ اور اعانت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو قتل کرنے والے تھے ان کے بارے میں مدعی کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون لوگ تھے، اور جس نے کروایا ایف آئی آر کی سٹوری کے مطابق اس کے بارے میں تو بالکل بھی کسی قسم کی کوئی ایک بھی ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر نہیں تھی کہ جس کی بنیاد پر اس کیس کا ٹرائل ہوتا یا بھٹو صاحب کو اس میں سزا دی جاتی۔ اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے انویسٹیگیشن کا۔ جب تفتیش ہوتی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف گواہ نہ ہونے کی وجہ سے ان کو بے گناہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر احمد رضا قصوری صاحب نے اس کیس کا ایک استغاثہ سیشن کورٹ میں فائل کیا۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ استغاثہ ٹرائل کرنے کا اختیار بنیادی طور پر سیشن کورٹ کے پاس ہوتا ہے، لیکن ایک اپلیکیشن دی گئی ہائی کورٹ میں کہ ہائی کورٹ اس کیس کا ٹرائل کرے، جو کہ بالکل غلط تھا۔ ہائی کورٹ کو اس کیس کا بالکل بھی ٹرائل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر ٹرائل ہوا۔ جو سیشن کورٹ کو کرنا چاہیے تھا وہ ہائی کورٹ نے کیا اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس کے بعد قانون یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جب تک 2 جسٹس صاحبان اس سزائے موت کی توثیق نہ کریں تو سزائے موت کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان نے، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہائی کورٹ میں جو اپیل کا رائٹ تھا وہ ختم کر دیا گیا، اور قانون کی خلاف ورزی یہ کی گئی کہ 2 جسٹس صاحبان نے سزائے موت کی توثیق نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اپیل سیدھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی گئی، وہاں پر سزائے موت برقرار رکھی گئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل آئی جو کہ جنرل ضیاء الحق نے اسے دیکھے اور پڑھے بغیر اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد صدر آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پہلے دور اقتدار میں جب وہ پریزیڈنٹ بنے تھے 2011 میں ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزا دی گئی تھی وہ بالکل غلط اور ناجائز طور پر دی گئی تھی۔ بعد میں قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے 2024 میں اس کا فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایڈمٹ کیا، کنفیشن کیا، اپنے جرم کا اعتراف کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو سزائے موت دی گئی تھی وہ غلط طور پر دی گئی تھی اور جلد بازی میں دی گئی تھی اور قانون کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی اپنے جرم کو کنفیس کر لیا کہ ان کی غلطی کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب دنیا سے چلے گئے۔ اب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے والد صاحب کے حوالے سے اپنی کتاب ڈاٹر آف دی ایسٹ میں جو یادداشتیں بیان کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ذوالفقار کی پھانسی سے 2 دن قبل انہوں نے ملازم کے ہاتھ ایک تحریر بھجوائی تھی۔ بے نظیر کا خیال تھا کہ تحریر میں درج پیغام ان کے والد کی پھانسی رکوا دے گا۔ اپنی سوانح عمری دختر مشرق
में बेनज़ीर 2 अप्रैल की सुबह पेश आने वाली इस वाक़े का ज़िक्र करती हैं। उसी रोज़ बेनज़ीर और उनकी वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो को ये एहसास हुआ था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी होने वाली है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की अहलिया नुसरत भुट्टो और बेटी बेनज़ीर भुट्टो रावलपिंडी सेंट्रल जेल से चंद मील दूर सहाला के पुलिस ट्रेनिंग कैंप में नज़रबंद रखी गई थी। किताब दुख्तर मशरक के मुताबिक 2 अप्रैल 1979 की उस सुबह पुलिस ट्रेनिंग कैंप सहाला के एक कमरे में बेनज़ीर सोफे पर आराम कर रही थी कि अचानक उनकी वालिदा ने कमरे में दाखिल होकर पुकारा, पिंकी। ये दरअसल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को जो घर में जिस नाम से पुकारते थे वो है। लेकिन नुसरत भुट्टो के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि बेनज़ीर साकत होकर रह गई। नुसरत भुट्टो ने कहा कि बाहर फौजी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज तुम्हारे वालिद से मिलने जाना होगा। इसका क्या मतलब है? इन दोनों को ही मालूम था कि इसका क्या मतलब है। इस रोज नुसरत भुट्टो की ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जेल में मुलाकात तय थी। बेनज़ीर की मुलाकात चंद दिन बाद होनी थी। जनरल ज़िया उल हक की हुकूमत ने दोनों के लिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात की अलग अलग दिन तय कर रखे थे। मुलाकात के लिए एक ही रोज भेजे जाने का बस यही मतलब हो सकता था कि ये आखिरी मुलाकात थी। किताब में बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि ये पैगाम मिलने के बाद उन्हें वाज़ेह हो गया था कि ज़िया मेरे वालिद को कत्ल करने वाले थे। तब उन्होंने एक आखिरी कोशिश करने की ठानी। अपनी स्वाने उम्री दुख्तर मशरक में बेनज़ीर लिखती हैं कि मेरा ज़हन तेजी से चलने लगा। हमें ये खबर बाहर तक पहुंचानी थी, लोगों और बैनुल अक़वामी बरादरी तक, कि यह आखिरी पैगाम भेजना था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। बेनज़ीर ने अपनी वालिदा से कहा कि उनसे कह दें कि मेरी तबीयत ठीक नहीं। इनसे कह दें कि अगर ये आखिरी मुलाकात है तो फिर ज़ाहिर है मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम कल जाएंगे। जिस वक्त नुसरत भुट्टो वहां मौजूद गार्ड्स को ये बात बता रही थी, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने एक पैगाम लिखा, मेरे ख्याल में वो हमें आखिरी मुलाकात के लिए बुला रहे हैं। ये पैगाम बेनज़ीर भुट्टो की एक दोस्त के लिए था, इस उम्मीद पर कि वो दोस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को खबर कर देंगी और वो रहनुमा सफारती हलकों को आगाह करने के साथ साथ अवाम को भी मुतहर्रिक करेंगे। सहाला पुलिस ट्रेनिंग कैंप में नजरबंदी के दौरान उन्हें जाती मुलाजिम रखने की इजाजत दी गई थी। उन्हें मुलाजमीन में एक इब्राहिम भी थे। बेनज़ीर ने इब्राहिम को बुलाकर कहा कि जल्दी से ये यास्मीन के पास ले जाओ। वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़ा खतरा मोल ले रही हैं। बाहर जाते हुए इब्राहिम की तलाशी ली जा सकती थी, उनका पीछा किया जा सकता था। इस कदर जल्दी में इब्राहिम से भी एहतियात का दामन छूट सकता था। किताब में बेनज़ीर ने लिखा कि इब्राहिम को यूं बेचने में खतरा तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अपने वालिद की जान बचाने के लिए उन्होंने ये दाव खेलने का फैसला किया। कागज का टुकड़ा थमाते हुए बेनज़ीर ने कहा कि जाओ इब्राहिम जाओ, गार्ड्स को बताना कि तुम मेरे लिए दवा लेने जा रहे हो। बाहर मौजूद मार्शल हुकाम आपस में गुफ्तगू के बाद अपने अफसरान को यह पैगाम पहुंचा रहे थे कि बेनज़ीर बीमार हैं और जवाबी पैगाम का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान इब्राहिम मरकजी दरवाजे पर पहुंचे और गार्ड से कहा कि मुझे बेनज़ीर साहबा के लिए दवाई लानी है, जल्दी। गार्ड्स सुन चुके थे कि बेनज़ीर भुट्टो की तबीयत ठीक नहीं। उन्होंने इब्राहिम को बाहर जाने की इजाजत दे दी। इसी दौरान हुकाम ने नुसरत भुट्टो को बताया कि चूंकि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं तो आप मुलाकात के लिए कल चले जाइएगा। इन्हें कुछ वक्त मिल गया था। किताब दुख्तर मशरक में बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि उस रात 8:15 पर उन्होंने अपने रेडियो सेट पर बीबीसी ट्यून किया और फिर वो रिपोर्ट नशर हुई जिसका उन्हें इंतजार था। बीबीसी रेडियो कह रहा था कि अपनी कैद से बेनज़ीर भुट्टो ने पैगाम भिजवाया है कि उन्हें अपने वालिद से आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया है। पैगाम बाहर भेजे जाने में कामयाबी मिल चुकी थी। बेनज़ीर लिखती हैं कि अपने पैगाम में उन्होंने लोगों से ये अपील की थी कि एहतजाज के लिए उठ खड़े हों। वो तवक्को कर रही थी कि यह हिस्सा भी नशर किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना किया गया। अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि मेरी वालिदा और मैं एक दूसरे को देख भी नहीं पा रही थी। हमारी आखिरी उम्मीद भी बुझ चुकी थी। और फिर 3 अप्रैल 1979 को उन्हें रावलपिंडी जेल ले जाया गया। बेनज़ीर की किताब से यह मालूम नहीं होता कि यह मुलाकात किस वक्त हुई थी। तहम एक और किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन में दर्ज मालूमात बताई जाती हैं कि मुलाकात दिन 11:30 बजे हुई थी और दोपहर 2 बजे तक जारी रही। आप दोनों यहां क्यों आई हैं? बेनज़ीर और नुसरत भुट्टो को इकट्ठे देखकर जेल में कैद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सवाल पूछा था। बेनज़ीर ने अपनी किताब में लिखा है कि इनके वालिद को भी तभी मालूम हुआ ये आखिरी मुलाकात है और ये कि उन्हें फांसी दी जाने वाली है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आगाह ना थे कि उनकी जिंदगी के बस चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं। दुख्तर मशरक में बेनज़ीर भुट्टो लिखती हैं कि उनके वालिद ने जेल सुपरिटेंडेंट से पूछा क्या फांसी की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। जेलर ने बताया कि अगली सुबह 5 बजे उन्हें फांसी दे दी जाएगी। तहम भुट्टो को इस बात का यकीन नहीं था।
कर्नल रफीउद्दीन मार्शल लॉ इंतजामिया की जनब से सेंट्रल जेल रावलपिंडी में स्पेशल सिक्योरिटी सुपरिटेंडेंट तैनात किए गए थे और जेल में जुल्फकार अली भुट्टो की हिफाजत इनकी जिम्मेदारी थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताब तहरीर की जिसका अनवान था भुट्टो के आखिरी 323 दिन। इस किताब में वो लिखते हैं कि 3 अप्रैल 1979 की शाम 6 बजे जुल्फकार अली भुट्टो को बता दिया गया था कि उन्हें फांसी दी जा रही है। रिटायर्ड कर्नल रफी ने लिखा कि जेल सुपरिटेंडेंट जब ये हुक्म सुना रहा था तो भुट्टो साहब गद्दे पर बगैर किसी घबराहट या परेशानी के लेटे थे, बल्कि उनके जिस्म और चेहरे पर नर्म नाजुक ढीलापन और मुस्कुराहट नमूदार हुई। कर्नल रिटायर्ड रफी ने लिखा कि ये सुनने के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने फांसी का तहरीरी हुक्म दिखाने, वकला और दूसरे रिश्तेदारों से मुलाकात करने का मुतालबा किया और यह भी कहा कि मेरे दांत बहुत सख्त खराब हैं और मैं अपने मौलज मिस्टर जफर नियाजी से फौरन मिलना चाहता हूं। किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक जेल सुपरिटेंडेंट को बताया गया कि उनके लिए टेलीफोन कॉल है। जब जेल सुपरिटेंडेंट और उनके हमरा आने वाले मजिस्ट्रेट और जेल डॉक्टर भी कोठरी से बाहर चले गए तो जुल्फकार अली भुट्टो और कर्नल रफी तन्हा रह गए। तब उन्होंने पूछा, रफी ये क्या ड्रामा खेला जा रहा है? कर्नल रिटायर्ड रफी ने लिखा कि जब उन्होंने बताया कि आखिरी हुक्म मिल गया है और आज फांसी दी जा रही है, तब मिस्टर भुट्टो में पहली मर्तबा मैंने वहशत के आसार देखे। उन्होंने ऊंची आवाज में अपने हाथ को हिलाते हुए कहा, बस खत्म, बस खत्म। ये वो लम्हा था जब जुल्फकार अली भुट्टो को अदराक हुआ कि उन्हें वाकई फांसी दी जाने वाली है। कर्नल रिटायर्ड रफी के मुताबिक जुल्फकार अली भुट्टो ने पूछा किस वक्त और फिर कहां पर फांसी दी जाएगी। किताब में दर्ज है, मैंने अपने हाथों की 7 उंगलियां उनके सामने की। उन्होंने पूछा 7 दिन बाद? मैंने उनके नजदीक होकर सरगोश में बताया, जनाब घंटे। चंद लम्हों के वक्फे के बाद उन्होंने कहा, रफी बस। किताब में लिखा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी घाट पर खड़ा करके 4 अप्रैल की सुबह ठीक 2:04 पर जल्लाद ने लीवर खींचा और भुट्टो साहब एक झटके के साथ फांसी के कुएं में गिर पड़े। जब जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई उस वक्त सईद मेहदी रावलपिंडी में डिप्टी कमिश्नर तैनात थे। अपनी किताब द आई विटनेस में उन्होंने ये वाकया दर्ज किया जो सईद मेहदी के मुताबिक खुद उन्होंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन जनरल ज़िया उल हक के एडीसी ने उन्हें बताया कि वाकया ऐन उसी वक्त पेश आया जैसे बयान किया गया। किताब में दर्ज है कि 4 अप्रैल 1979 की सुबह ज़िया उल हक ने एक ब्रीफिंग के लिए महकमा खारजा के दफ्तर जाना था। सईद मेहदी के मुताबिक ज़िया उल हक वक्त के पाबंद नहीं थे, लेकिन उस रोज सुबह 9 बजे वजारत खारजा पहुंचने के लिए 8:40 पर ही अपनी रिहाइश गाह के बरामदे में तैयार खड़े थे। रास्ते में जब उनका काफिला रावलपिंडी जेल के करीब से गुजरा तो ज़िया उल हक ने अपने मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जफर अली से पूछा कि क्या भुट्टो को फांसी दी जा चुकी है। मिलिट्री सेक्रेटरी ने बताया कि सुबह के 2 बजे जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई है। गोया मुल्क के फौजी हाकम जनरल ज़िया उल हक ये ज़ाहिर कर रहे थे कि उन्हें फांसी दिए जाने का इल्म नहीं है। सईद मेहदी ने अपनी किताब में लिखा कि जनरल ज़िया ने अफसोस का इजहार किया और बताया कि उनका जुल्फकार अली भुट्टो से बहुत करीबी तल्लुक था और भुट्टो उन पर बहुत मेहरबान थे, लेकिन अदालती फैसलों के आगे वो बेबस थे। जनरल ज़िया का बयान, अदालती फैसलों के आगे वो बेबस थे, पर तबसरा करते हुए सईद मेहदी लिखते हैं कि ये बात सरासर गलत थी, क्योंकि ये एक खुला राज था कि जनरल ज़िया खुद और उसकी पूरी टीम जजिस पर उस फैसले के लिए दबाव डाल रही थी। किताब के मुताबिक रावलपिंडी जेल के करीब से गुजरते हुए जनरल ज़िया ने पूछा कि क्या भुट्टो को दफना दिया गया है। इस सवाल की वजह यह थी कि जनरल ज़िया उल हक जुल्फकार अली भुट्टो के लिए दुआए फातिहा पढ़ना चाहते थे और ये दुआ मैयत के दफनाने के बाद ही पढ़ी जा सकती है। एडीसी का सुनाया वाकया दर्ज करते हुए सईद मेहदी बताते हैं कि जनरल ज़िया ने कहा कि अगरचे अभी तक ये मालूम नहीं कि भुट्टो को दफना दिया गया है या नहीं, इसके बावजूद दुआए फातिहा पढ़ ली जाए और सब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। यहां तक कि गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ने भी दुआ के लिए स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया। उस वक्त जनरल ज़िया की एडीसी ने फौरन ड्राइवर को टोका कि वो स्टीयरिंग व्हील थामे थामे ही दुआ कर लें। सईद मेहदी लिखते हैं कि जब जुल्फकार अली भुट्टो की तदफीन कर दी गई उसके बाद हुकूमत ने उनकी मौत का ऐलान किया। मैं समझता हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो साहब के केस का फैसला अदलिया के मुंह के ऊपर तमाचा है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।